Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video, we will be discussing or continuing chapter number 4, Carbon and its compound from class 10th NCERT science book. So far, we have discussed about the versatile nature of carbon atom and two properties we have come to know, that one is tetravalency and second is its catenation property. And catenation is the tendency to form large molecules just by combining with other atoms of carbon. So what are organic compounds? So the two characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation, put together give rise to a large number of compounds. कि दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमने कार्बन में देखे हैं, एक तो टेट्रावेलेंसी और दूसरा है कैटेनेशन, हमने उन्हें एक साथ रखे हैं और क्या देने के लिए, ताकि वो क्या दोनों एक साथ वर्क करते हैं और एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेते हैं. So many have the same non-carbon atom or group of atoms attached to different carbon chains. तो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें नॉन कार्बन एटम भी अटैच होता है और different carbon chains के साथ में. So these compounds were initially extracted from natural substances and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. ये जो compounds हैं initially उन्हें हमने natural substance से extract किया था और इन्हें ऐसा माना गया कि जो ये compounds हैं यानी organic compound वो सिर्फ living system में ही बनते हैं. So that is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. और ये postulate किया गया कि जो एक vital force होती है वो जरूरी होती है उनके synthesis के लिए, यानी living cell के अंदर ही वो vital force present होती है. Friedrich Wöhler disproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanide. तो जैसा ये माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ सेल में ही बन सकते हैं कार्बन के कंपाउंड, तो इसको फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में डिस्प्रूव किया यूरिया बना के, किससे? अमोनियम साइनेट से. ठीक है, NH4CN होता है अमोनियम साइनेट. बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, oxides of carbon, carbonate and hydrogen carbonate salts continue to be studied under organic chemistry. लेकिन कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे किसके? कार्बन कंपाउंड्स, इन्हें छोड़ के जो कार्बाइड्स हैं, जो ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, या कार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स साल्ट्स हैं, इन सबको छोड़ के बाकी सब कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं. So let's see, this we have already discussed, is saturated and unsaturated carbon compound. If carbon compounds are having single bond between carbon-carbon atom, then those will be considered as saturated, and if it is having carbon-carbon double bond or triple bond, then they will be considered as unsaturated carbon compounds. So we have already seen the structure of methane. हम methane का structure देख चुके हैं पहले ही कि उसमें एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन के एटम्स कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं. Another compound formed between carbon and hydrogen is ethane with a formula of C2H6. जो दूसरा कार्बन का कंपाउंड है हाइड्रोजन में वो एथेन है और उसका फॉर्मूला C2H6 होगा. अगर आप इस फिगर में देखें तो दो कार्बन है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, तो इस कार्बन के बीच एक बॉन्ड होगा. बाकी जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन के, अगर हम राइट वाले कार्बन को देखें तो वो एक एक हाइड्रोजन से क्या है? बॉन्डेड है इसके अंदर. ठीक है, और इस तरह से लेफ्ट वाला कार्बन भी एक एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है. तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जैसी कंडीशन बन जाती है इसके अंदर, यानी अगर हम इन्हें लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जा सकता है. So in order to arrive at the structure of simple carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond. कि अगर हमें सिंपल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग, ये स्टेप्स हम नीचे देखेंगे फॉलो करते हुए. एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन. और जो बची हुई वैलेंसी है कार्बन की उससे सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या किसका यूज करेंगे? हाइड्रोजन का.
तो फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप, कि जो एथेन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से आया। इन स्टेप 1 वी हैव ओनली फॉर्म ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे सिंगल बॉन्ड बना दिया हमने। अब इसके पास भी 3 बॉन्ड खाली बचे हुए हैं, इस वाले एटम के पास भी 3 बॉन्ड खाली बचे हुए हैं, तो हम सेकेंड स्टेप में इससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, इससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच, तो इस कार्बन के भी 4 के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाते हैं वैलेंसी, और इस वाले कार्बन की भी 4 की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। और इस तरह से हम C2H5 या हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी कह सकते हैं इसको, एथेन का मौलिक जो स्ट्रक्चर है वो बना देते हैं। So 3 valencies of each carbon atom remain unsatisfied. So each is bonded to 3 hydrogen atoms giving this compound. The electron dot structure of ethane is shown in figure 4.60. इसमें दिखा रखा है इन्होंने इस स्ट्रक्चर को। And can you draw the structure of propane? अब देखिए ध्यान देने वाली बात इसमें है कि प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, एथेन में 2 कार्बन होंगे और मेथेन में 1 कार्बन होता है। यानी मैथ हम 1 कार्बन के लिए यूज करते हैं, एथ 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3 कार्बन के लिए, ब्यूट 4 कार्बन के लिए, पेंट 5 कार्बन के लिए, हेक्स 6 कार्बन के लिए होता है। फिलहाल यहीं तक ध्यान रखें आप कि जब भी ये प्रोपेन होगा यानी 3 कार्बन होंगे इसके अंदर, ठीक है, तो बना सकते हैं हम कि 3 कार्बन में एक कार्बन लिखिए, सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखिए, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखिए। और जब आप सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा चुके हैं तीनों कार्बन के बीच में, तो उनके अंदर से बॉन्ड्स निकालिए। बीच वाले कार्बन पे तो 2 ही बॉन्ड बाहर आएंगे क्योंकि 2 बॉन्ड उसके एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं, जबकि जो टर्मिनल होंगे उनके ऊपर 3-3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो उसका फॉर्मूला बनेगा CH3 CH2 CH3 या C3H8, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। So you will see that the valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them, कि जितनी भी वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, और ये कंपाउंड ज्यादातर रिएक्टिव नहीं होते हैं। However, another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H4 and is called ethene. अब दूसरा हम कंपाउंड देख लेते हैं कार्बन का जिसका फॉर्मूला होगा C2H4 और उसे हम एथीन कहते हैं। How can this molecule be depicted? अब इस मॉलिक्यूल को हम कैसे बना सकते हैं? We follow the same step wise approach as above. सेम जैसे ऊपर हमने अप्रोच की थी वो बनानी है हमें, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल हमें बॉन्ड लगाना है क्योंकि इसमें 4 ही हाइड्रोजन है, तो हम 4 हाइड्रोजन को 2 इस वाले कार्बन से 2 इस वाले कार्बन से अटैच कर देते हैं, और बाद में इनकी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बन जाता है। इसका अल्टरनेट भी कि पहले ही आप इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा लीजिए, अब 2 बॉन्ड इसके बचे, 2 बॉन्ड इसके, तो 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच होंगे, तो ये क्या बना देगा, एथीन। तो कार्बन कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड स्टेप 1 में वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड। हमने क्या देखा स्टेप 2 में कि जो कार्बन की एक वैलेंसी अभी भी अनसेटिस्फाइड रह जाती है, दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज ए डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। ये तभी सेटिस्फाई हो सकता है कि अगर कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड। और इस तरह से हम एथीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है एथीन का, ठीक है। फिर से किधर वो हम एथीन, ठीक है, क्योंकि एथीन दिया हुआ है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। इससे पहले हम एथेन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। The electron dot structure for ethene is given in figure 4.7. Yet another compound of hydrogen and carbon has the formula C2H2 and is called ethyne. अब एक तीसरा कंपाउंड भी आता है हाइड्रोजन और कार्बन का जिसका फॉर्मूला C2H2 होगा और उसे एथाइन कहते हैं हम। कैन यू ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथाइन? एथाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा कि एक हाइड्रोजन ये हट जाएगा, एक ये, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो CH और CH एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा दोनों कार्बन के ऊपर, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन
the two carbon atoms in order to satisfy their valencies. तो कितने बॉन्ड्स हो सकते हैं कि जो जरूरी हैं कार्बन एटम्स के बीच में सेटिस्फाई करने के लिए उनके वैलेंसीज को? तो इथाइन में 3 बॉन्ड्स होंगे. So such compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds. कि ये कंपाउंड जो कार्बन के जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके बीच में कार्बन एटम्स के बीच में, ध्यान रखें कार्बन एटम्स के बीच में, उसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं. एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. तो अगर हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं तो वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, कौन से? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. So this is all about this video, that there are two type of carbon compounds, saturated and unsaturated compound. Saturated are those which are having single carbon bond, and whereas unsaturated carbon compounds are having double and triple bond between them. In our next video, we will discuss the chains, branches and ring formed by the carbon compound. Well, thank you for watching this video.